Good afternoon, ladies and gentlemen. I hope all of you are safe and your families are safe. And I must congratulate all those who are in the field, who are doing human service by bringing news to people in these extremely difficult times. I would also like to congratulate all the people who are behind the scenes, whether in television or in print or in the cyberspace, who are keeping the engines running and who are getting newspapers printed, broadcasts going up, and of course the cyberspace ticking so that people can stay updated. Today is the 36th day of the Janata curfew, of the lockdown. If you were to count the Janata curfew as day zero or a day one, in the past 36 days, the government has implemented the lockdown both at the central level and at the state level, invoking provisions of the National Disaster Management Act, principally uh, principally Section 6I and 10L of the National Disaster Management Act, coupled with the provisions of the Criminal Procedure Code, which deal with issues relating to curfew and imposing prohibitory orders, etc. That's been the template of enforcing this lockdown over the past 36 days. Since the Prime Minister is going to be meeting the Chief Ministers tomorrow, it is very important for us to ask the national government, to ask the NDA BJP government, the central government, that what is the plan going forth? What is the plan over the next 1 month as we prepare to exit this lockdown in a calibrated manner? It is understandable that when this pandemic started, possibly the government wasn't aware of its intensity and severity, and therefore got caught unprepared. Though it would be tried to say that going back to the 7th or 8th of January 2020, Government of India, by its own admission, on the floor of Parliament, was in conversation with the World Health Organization with regard to the evolving nature of this pandemic. But be that as it may, now the government has got a clear 1 month or 36 days whereby they have been able to get a measure of the spread of infection as well as the challenges which are there, both on the medical as well as the humanitarian front. And therefore, we would like to ask the government of India, we would like to ask the Prime Minister that when he meets the chief ministers tomorrow, is there a comprehensive, holistic strategy which the union government is going to present to the chief ministers, that this is the plan going forth over the next 2 months? Because on the 3rd of May, COVID 19 is not going to disappear. The virus in the absence is here to stay. And therefore, we have to prepare ourselves, we have to prepare our people to live with the virus. And under those circumstances, if we have to live with the virus, what is the best strategy whereby India can cope with this pandemic, which seems to be unremitting and unrelenting in nature at the moment? The reason why I mentioned the National Disaster Management Act
is because the National Disaster Management Act envisages that there has to be a national plan which has to be prepared in order to tackle natural disasters, epidemics, or pandemics. Mr. Sybil, when he had briefed you on Saturday, had alluded to this aspect in great detail. And the reason why this aspect is extremely germane is till the time the government does not put a national plan into the public space, the states will not be able to formulate their own plans. States are also mandated in terms of Section 23 to mandate their own state plans going forth. Similarly, in the absence plan, in terms of Section 31 of the National Disaster Management Act, the districts will not be able to formulate their plans. So, if we require a national strategy to deal with this pandemic going forth, the first and primary prerequisite for that is there has to be a national plan. And we would like to ask the government that why in the past 36 days has a national plan not been formulated, shared with the states, and transparently put into the public domain so that people, the 1.3 billion people who constitute the sovereign, secular, socialist, democratic Republic of India, can be aware as to what their government is thinking. Initial ad hocism, as I said, is understandable. But you cannot have a policy which is ad hocism in perpetuity in order to deal with this pandemic. The second point that we need to flag is that global wisdom now very clearly evidences that except for aggressive testing, there is no other strategy of containing and dealing with the pandemic. Unfortunately, in India, if you take 30th January 2020, when we diagnosed or discovered our first case, which was a student who had returned from Wuhan, going forth from that day, we have conducted 5,79,957 tests so far. This is far below the global average. Even our neighbors, and those figures are available in the public domain. I am not going to bother you with those figures. Suggest that we are testing below even our neighbors. We are given to understand, based on credible, authoritative information, that India has the capacity to conduct 100,000 tests a day. So we would like to ask the government that why are tests being capped at 39,000? If we have the potential in order to carry out 100,000 tests a day, then why is testing deliberately being capped at 39,000? Is there, and I say it with all responsibility, an attempt to either play down the magnitude, or is the government unsure that if they go in for testing to the capacity which medical institutions which are charged with leading this battle claim that they have, then they do not have the capacity to be able to deal with its implications? Either way, government needs to tell people, why are we not testing to our full potential? Coupled with that, there is a report
in the public space that we have only 3 lakh RNA kits left. Now, the RNA kit is the most critical component of the entire testing process. So if we have only 3 lakh RNA kits left, and we are doing 39,000 tests a day, this essentially means that in 1 week's time, we would have completely exhausted our capacity to test. In other words, India may be without the testing shield. So government needs to very clearly tell the country that in the last 36 days, how many test kits have been imported or domestically manufactured? How have they been distributed across the states? What has been the demand from different states, considering that 60% of India's cases are coming in from 10 of its biggest cities? What is the position with regard to personal protection equipment? How much has been manufactured and how much has been disseminated in the last 36 days? What is the position with regard to ventilators, other critical medical infrastructure, even masks, because that's the most critical component of the national strategy? You do not get answers from the government that how have they utilized the last 36 days in order to augment and beef up India's capacity to fight this pandemic. Because a lockdown has only 2 purposes. It can temporarily contain the spread of the disease, and number 2, give the medical frontline teams as well as government time to come up to speed insofar as capacity is concerned. And if we have not utilized that time properly, then I'm afraid we are on a very, very slippery slope. Coupled with that, and the last point that I would like to make, or the penultimate point I would like to make, is going by the reports in the public space. There seems to be a very interesting claim which has been made by the gentleman who is heading the projection efforts, or is a part of the containment strategy team, a gentleman from Niti Aayog, who has said that based upon modeling or projections which they have done, there will be no fresh cases in India beyond May 16th. I wish this projection comes out to be correct. I pray to God that this projection comes out to be correct. In fact, everybody in India would pray to God that this projection comes out to be correct. But we would like to ask the government, do they stand by this assessment or this projection that by 16th of May 2020, there would be no fresh cases of COVID-19 in India? Because this is a very serious claim to be made. And if somebody in a position of responsibility who's charged with the remit of leading this fight on the 26th of April makes this claim that 20 days later, India would be COVID-19 free, we would request the government to substantiate that claim. We are not even saying that you provide the empirical evidence as to how you've arrived at that claim. For the simple reason, as I earlier said, the whole country will thank and pray if this prediction turns out to be correct. But since this prediction or this assessment has been made,
we expect a substantiation from the government, from the health minister, from the prime minister, with regard to the efficacy of this claim. Last, I would like to say is that the most unfortunate humanitarian tragedy of these past 36 days is what has happened to our migrants, people who come from villages in order to keep our factories, our cities running. Even 36 days later, there seems to be no strategy as to how the government expects to or wants to deal with the problem of migrants. If you go by reports which are there in the public space, substantiated by figures provided by government to the Supreme Court, there are about 41 lakh migrants who are in different relief camps, which are run by the by different state governments. There are another 99 lakh people who are being provided food by various state governments through various instrumentalities or by relief organizations, non-governmental organizations. That's 1.5 crore people. So when the remit or when the direction of the government to the people is stay home, don't these people also have a right to go back home? And what is the government doing to facilitate their return back to their homes? Or do we expect that while we sit in the safety of our homes, they will continue to struggle on the streets of India, undertaking brutal marches with their families on foot in order to try and get back to their home and hearth? So we expect that in the meeting tomorrow that the Prime Minister has with the Chief Ministers, we do not hear homilies, but we see a calibrated, clear, pointed, and a precision plan that over the next 90 days, what is it that Government of India, states and districts are expected to do to deal with COVID-19? मैं इसको संक्षेप में हिंदी में इसका तर्जुमा कर देता हूं और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनका उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहूंगा। कल प्रधानमंत्री जी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है ये तय करने के लिए कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए। आज 36 दिन हो गए पूरा मुल्क लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन को क्रियान्वित किया जा रहा है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसकी धारा 6I और 10L के तहत। और जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, राज्य सरकारें जो CRPC के फौजदारी के कानून के प्रावधान हैं उनके उसको संज्ञान में लेके उसका सहारा लेके केंद्र सरकार की जो डायरेक्शंस हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो यहाँ से फरमान जाते हैं उनको लागू करते हैं। पर उसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये चीज बहुत साफ तौर पे कही गई है कि सरकार को एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने की जरूरत है किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए। और ये कोविड-19 किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है, उससे ज्यादा है। पिछले 36 दिन में सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है
कि उन्होंने कोई राष्ट्रीय योजना और किसी राष्ट्रीय योजना का मसौदा तैयार किया है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। क्योंकि 3 मई को कोविड-19 चला तो जाएगा नहीं। जब तक वैक्सीनेशन इसकी नहीं मिलेगी, वो कितनी कामयाब होती है। एक बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि हमको इस वायरस के साथ जीना पड़ेगा और मुल्क पूरे अंतराल के लिए लॉकडाउन में नहीं रह सकता। तो इसलिए अगले 3 महीने इस आपदा से निपटने के लिए क्या राष्ट्रीय योजना सरकार ने तय की है? हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री, जो कि एक कानूनी ज़रूरत है, एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उस रणनीति को मुख्यमंत्रियों के सामने रखेंगे। क्योंकि जब तक राष्ट्रीय रणनीति तैयार नहीं हो सकती होती, तब तक धारा 23 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की प्रदेश सरकारें अपनी योजना नहीं बना सकते। और जब तक प्रदेश सरकारें अपनी योजनाएं नहीं बनाती, धारा 31 के तहत जो जिला प्रशासन है वो अपनी योजना नहीं बना सकता। तो इसलिए जब तक राष्ट्रीय योजना नहीं बनेगी, पूरा देश लंबित रहेगा। हम समझ सकते हैं कि जब ये कोविड-19 शुरू हुआ, तो सरकार को इसके प्रकोप का अंदाजा नहीं था और इसलिए जो कदम शुरू में उठाए गए और जिसका एक बहुत बड़ा मानवीय प्रकोप भारत को झेलना पड़ा है, वो आनन-फानन में उठाए गए। जबकि ये बात बिल्कुल सही है कि और सरकार ने खुद माना था सदन के पटल के ऊपर कि उनकी बातचीत कोविड-19 के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 8 जनवरी 2020 से शुरू हुई थी। पर अब तो 36 दिन निकल गए। सरकार को मालूम है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेफिशिएंसीज कहाँ हैं, जो मानवीय तौर से लोगों की मदद करनी है, उसमें क्या तकलीफ आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। तो साफ तौर के ऊपर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अगले 3 महीने की रणनीति क्या है, ताकि प्रदेश सरकारें हैं और जिला प्रशासन है, वो भी जो एक कानूनी ज़िम्मेवारी है उनके ऊपर, उस कानूनी ज़िम्मेवारी को निभा सकें। दूसरा, जो सबसे मुख्य बात है, वो ये है कि अब ये बात जग ज़ाहिर है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही एक रास्ता है और वो है टेस्टिंग। और भारत में जो टेस्टिंग है, वो बहुत ही कम है। 30 जनवरी 2020 से लेके 26 अप्रैल तक 5,80,000 लगभग हमने टेस्ट किए हैं, जो हमारे पड़ोसी देशों से भी कई मात्रा में कम है। अब जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए संगठन हैं, जिनको ये उत्तरदायित्व दिया गया है इस लड़ाई को लड़ने का, वो कहते हैं कि हम 1 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं, पर भारत सिर्फ 39,000 टेस्ट कर रहा है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये टेस्ट की संख्या क्यों कम रखी गई है? अगर हमारे पास 1 लाख टेस्ट करने की क्षमता है, तो इसको 39,000 पे क्यों कैप किया गया है? इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या सरकार को इस बात का अंदेशा है कि अगर टेस्टिंग बड़ी मात्रा में की गई और उसके परिणाम नकारात्मक निकले, तो हमारे पास उन परिणामों के साथ निपटने की क्षमता नहीं है? या
और कोई कारण है जिसके जिसके तहत ये टेस्टिंग को डेलिबरेटली कम रखा जा रहा है? ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से हम जवाब चाहेंगे। दूसरी बात ये है तीसरी बात ये है कि जो खबरें सार्वजनिक हुई हैं, उनके मुताबिक हमारे पास सिर्फ 3 लाख आरएनए किट्स हैं। 3 लाख आरएनए किट्स का मतलब कि सिर्फ हम अगले 7 दिन तक टेस्ट कर सकते हैं। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये परिस्थिति अगर है, तो क्यों उत्पन्न हुई है? पिछले 36 दिन में आप बताइए, कितने आपने टेस्ट किट्स प्रोक्योर किए हैं? किस-किस राज्य सरकार को कितनी-कितनी टेस्ट किट्स भेजी गई हैं? राज्य सरकारों ने आगे जिला प्रशासनों को कितनी टेस्ट किट्स भेजी हैं? जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, वेंटिलेटर्स हैं, मास्क्स हैं, ये कितने और किस मात्रा में पिछले 36 दिन में इसकी खरीदारी की गई है और कहाँ-कहाँ इनको डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि जो सारी प्रोक्योरमेंट है, केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज़ कर दी। क्योंकि देश को ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकोप से निपटने के लिए जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, उनकी किस तरह की तैयारी है। ये लोगों को भरोसा और हौसला देगी और सरकार को भी भरोसा और हौसला देगी इस लॉकडाउन को खोलने की। जो चौथी बात है कि आज ये चीज़ सार्वजनिक हुई है कि एक टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष हैं, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए बनी हैं, उन्होंने ये कहा है कि 16 मई 2020 के बाद शायद भारत में कोई कोविड-19 का केस नहीं होगा। अगर ये बात सही है, तो उनके मुँह में घी शक्कर। मैं और सारा देश उनका कृतज्ञ रहेगा कि अगर ये जो भविष्यवाणी है, ये पूरी तरह से सही आ जाए और ये देश दोबारा से चलने लगे। हम सरकार से ये नहीं जानना चाहते कि इसका बेसिस क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि हम और इस देश में बसते हुए 130 करोड़ लोग बहुत-बहुत मशकूर होंगे, अगर ये भविष्यवाणी सही हो जाए। पर हम सरकार से इतना जानना चाहते हैं कि आप अधिकृत तौर पर इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं कि ये जो अनुमान लगाया गया है, ये अनुमान सही है कि 20 दिन के बाद कोविड-19 से हमारे इस प्यारे मुल्क को, भारत के गणतंत्र को पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। ये बहुत ही एक अहम बात, बहुत ही एक बुनियादी बात, एक बहुत ही ज़िम्मेदार टास्क फोर्स के चेयरमैन की तरफ से सरकार को कही गई है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या इस बात को इसकी पुष्टि करने के लिए तैयार है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पिछले 36 दिन की अगर सबसे बड़ी कोई मानवीय आपदा रही है, वो ये कि जिस तरह से हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो अपने गाँव देहात से शहरों में काम करने आते हैं, जिस तरह से हमने उनकी के साथ बर्ताव किया है। आज भी 41 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट्स जो क्वारंटीन और रिलीफ कैंप्स राज्य सरकारों ने बनाए हैं, उसमें रह रहे हैं। 99 लाख माइग्रेंट्स को राज्य सरकारें, एनजीओज़ जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, उनको खाना खिला रही है। आप सरकार की तरफ से ये हिदायत हुई है कि सबको अपने घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। तो क्या इन लोगों को अधिकार नहीं है कि अपने घर जा सकें? क्या इन लोगों को सुरक्षित रहने का अपने माता-पिता के साथ, अपने परिवार के साथ क्या उनको ये हक नहीं है? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि माइग्रेंट्स को लेके उनकी क्या नीति है? क्या सरकार ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करेगी
कि ये अपने घर वापस जा सके। जैसे असम में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट 3 दिन के लिए खोली गई है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर वापस जा सके। तो जो असम सरकार कर रही है, क्या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर के क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रेलगाड़ियां चलाई जा सके, जिससे कि इन लोगों को अपने घर वापस भेजा जाए? क्या सरकार ने कोई ऐसी पहल की है कि जो जिन प्रदेशों में ये फंसे हुए हैं और जो रिसीविंग स्टेट्स हैं, उनके बीच कोई वार्तालाप करवाया है, जिससे कि जो रिसीविंग स्टेट्स हैं वो इनको वापस लेने के लिए और किस तरह से वापस लेंगे, वहाँ पे क्या क्वारंटाइन के साधन होंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर कोई पिछले 36 दिन में चर्चा हुई है? हम ये उम्मीद करते हैं कि अ, जब प्रधानमंत्री जी कल मुख्यमंत्रियों से बात करें, तो इन बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालें। और आखिरी बात, जितनी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के खिलाफ के पास राजस्व खत्म होता जाता जा रहा है, पैसा खत्म होता जा रहा है। हमारे पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि 36 दिन में सिर्फ 71 करोड़ रुपया आया है केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। तो क्या जो केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकारों की मदद करेगी? अगर मदद करेगी, किस हद तक मदद करेगी? जिससे कि उनको भी ये अनुमान रहे कि भई केंद्र सरकार से इतना पैसा आएगा, इतना पैसा हमको इकट्ठा करना है, जिससे कि हम इस लड़ाई को एक चुस्त-दुरुस्त ढंग से अगले 3 महीने, 6 महीने तक लड़ सकें। मैंने आपका बहुत समय ले लिया। आपका जो भी सवाल होंगे, मैं सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी सर, मैं बारी-बारी से आता हूँ। सबसे पहले जो साथी बाहर हैं सड़क से जो लोग जॉइन कर रहे हैं, सिद्धार्थ, अनम्यूट करके सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, कांग्रेस पार्टी ये लगातार टेस्टिंग के ऊपर स्ट्रेस देने की बात कर रही है। ये आंकड़ा भी आप लेके आए हैं अभी 39,000 का, लेकिन एक बात कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे समझना चाह रहा था आपसे। एक तरफ आपने कहा कि आरएनए किट केवल 3 लाख है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 1 लाख की कैपेसिटी है डेली की, उसको टेस्ट नहीं किया जा रहा। कि कृपया इस कंफ्यूजन को एक बार आप क्लियर कर दें। ये पहली चीज। दूसरा ये कि माइग्रेंट वर्कर्स की भी बात हो रही है, एक प्लान की भी बात हो रही है, लेकिन अभी जो नीचे ग्राउंड पे हम लोग जो कवर कर रहे हैं और प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर एक अस्पताल है जो निगम के अंडर में आता है, बाड़ा हिंदूराव अस्पताल। एक नर्स वहां पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद उस पूरे हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। उसके अलावा 32 पुलिस वाले दिल्ली में, 64 पुलिस वाले जो हैं मुंबई में पॉजिटिव पाए गए हैं, सैनिटरी वर्कर्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो क्या समझ में आपके क्या आ रहा है कि क्या एग्जीक्यूशन जो अभी तक की भी प्लानिंग है उसका ठीक से नहीं हो पा रहा है एग्जीक्यूशन, कि इस तरीके की दिक्कतें आ रही है? क्योंकि और अगर एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है तो आगे जाके और गंभीर स्थिति बनने वाली है। क्या मांग करेंगे आप? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का बारी-बारी जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमको जो बताया जा रहा है चिकित्सा विशेषज्ञों की तरफ से, जिनको ये ज़िम्मेवारी दी गई है सरकार की तरफ से कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए, कि भारत के पास रोज़ 1 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। That we have the capacity to process 100,000 samples. जो आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वो ये है कि हम 39,000 39,000 अगर मेरी हिंदी सही है तो, कि उन विनीत 39,000 कितना होता है? हाँ, सही है सर। हाँ, हाँ, 39। तो 39,000 हुँ। टेस्ट किए जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये टेस्ट इसलिए कम किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार के पास साधन नहीं है, क्योंकि जो एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसके मुताबिक आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 3 लाख आरएनए किट्स हैं। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 7 दिन की टेस्टिंग का सामान बचा है। तो क्या ये टेस्टिंग इसलिए कम की जा रही है क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है?
साधन नहीं है कि क्या ये एक सोचा समझा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि टेस्टिंग को कैपेसिटी के 50% के भी कम रखें, 39 पे रखें, क्योंकि सरकार को शायद ये लगता होगा कि अगर इसके टेस्टिंग के परिणाम नकारात्मक आए तो हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि इससे हम पूरी तरह से निपट पाए। कोई तो कारण है कि वी आर नॉट टेस्टिंग टू कैपेसिटी। तो हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि हम व्हाई आर वी नॉट टेस्टिंग टू कैपेसिटी। दूसरा, जहां तक जिस बात का आपने जिक्र किया, देखिए ये एक वास्तविकता है कि ये कोविड-19 के खिलाफ के साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर 16 मई को भारत में हम नेगेटिव हो जाते हैं, कोई फ्रेश केस नहीं आता, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। हर व्यक्ति, हर भारतवासी इस बात का शुक्र मनाएगा, भगवान का शुक्र करेगा कि इस महामारी से हमको निजात मिली। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है जिसके बारे में आप ज़िक्र कर रहे हैं कि इस तरह के केसेस आते जा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम लोग बहुत खुश हुए थे, पंजाब में मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट है शहीद भगत सिंह नगर, जहाँ सबसे पहले पंजाब में केसेस आए थे। और एक व्यक्ति बाहर से आए थे और उनकी मौत हो गई और कई लोग इन्फेक्ट हो गए। तो 2-3 दिन पहले वो जितने केसेस थे सब नेगेटिव आ गए थे। हम लोग बहुत खुश हुए। कल उसी ज़िले में बलाचौर एक असेंबली सेगमेंट है, उसमें 4 नए केस आ गए। अब वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 4 नए केस कैसे निकल आए। तो ये एक 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 इवॉल्विंग प्रोसेस है। इसीलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार के पास एक राष्ट्रीय योजना, राज्य सरकारों के पास एक राज्य की योजना और जिला प्रशासन के पास एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बहुत ज़रूरी है कि अगले 6 महीने तक हम इससे कैसे निपटें। रमन जी सवाल पूछ। मनीष जी, अभी आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि टेस्टिंग के अलावा कोई चारा नहीं है और ये राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय आपदा से भी बड़ी एक त्रासदी है, क्योंकि जिसका टेस्ट नहीं हो रहा है उसके लिए भी संकट है, जिसका टेस्ट हो गया जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके लिए भी संकट है। कल हम लोगों को रात में 9-10 बजे तक नींद नहीं आई जब तक कि ये कंफर्म नहीं हुआ कि निगेटिव है। लेकिन देश के कई हिस्सों में ये सुविधा अभी तक भी नहीं है। आज हमने देखा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दौरे पर थे। क्या, जैसे कि आपने कहा कि कल प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इससे पहले कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एंटरटेन नहीं किया गया था। लेकिन आपको लगता नहीं केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिक हैं उनकी बैठक बुलाकर एक योजना तैयार की जानी चाहिए कि जो 4,500 रुपए का पैसा लग रहा है, फी लग रहा है, उसको कुछ कम करके एक सहमति बना के, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बड़ी तादाद में लोग जाकर खुद अपना टेस्ट कराएं और सरकार का हाथ बटाएं। देखिए रमन, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका टेस्ट नेगेटिव आया और बाकी जिन लोगों ने टेस्ट कराया उन भगवान से ये दुआ है कि आप लोग फील्ड में हैं और ये नेगेटिव ही रहे। देखिए इसमें 2 बातें हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी कैसे टेस्ट कर लेंगे अगर टेस्ट किट्स ही नहीं है। टेस्टिंग करने के लिए तो टेस्ट किट्स की सबसे पहले ज़रूरत है। तो सरकार को ये बात साफ करनी चाहिए कि टेस्टिंग किट्स को लेके क्या सिचुएशन है। क्या ये बात सही है कि सिर्फ 3 लाख किट्स बची हैं? और अगर ये बात सही है कि 3 लाख किट बची हैं तो अगले 1 हफ्ते में कितनी और आनी है, कहाँ से आनी है, अगले 1 महीने में क्या प्रोजेक्शन है, 2 महीने में क्या प्रोजेक्शन है, 3 महीने में क्या प्रोजेक्शन है, क्या टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है।
कि अगले 6 महीने में हम लोग कितने लोगों को टेस्ट करेंगे, या सरकार ने ये तय किया है कि भाई जहाँ पे कोई पॉजिटिव केस निकलता है उसको कंटेनमेंट जोन बना के उसको सील करके वहां पे हम कम्युनिटी टेस्टिंग करेंगे। देयर हैज टू बी अ स्ट्रेटजी। और जहां तक रही प्राइवेट टेस्टिंग का सवाल, देखिए सवाल ये है कि आपने प्राइवेटली टेस्ट करा लिया, खुदा ना खास्ता वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एडमिट कर रहा है, या आप किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाएंगे? तो इसके ऊपर एक क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे कि सरकार को, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये कहना चाहिए कि आपको इतने बेड्स अपने हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए डेडिकेट करने पड़ेंगे। उसके लिए अगर ऑर्डिनेंस लाना जरूरी है तो सरकार को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए कि जिससे कि हिंदुस्तान का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो, वो पूरी तरह से इस लड़ाई इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बैठक करनी चाहिए। और इवन जो टेस्ट का रेट है, राइट, उसके ऊपर भी कोई एक आम राय बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई मध्यम वर्ग का ये परिवार है, अगर उसके परिवार में 5 लोग हैं, अगर उन 5 लोगों को टेस्ट कराना पड़ गया तो 20-25 हजार रुपये लग जाएगा। कई लोगों की तो इतनी तनख्वाह नहीं है महीने में। तो इन सब चीजों के ऊपर एक सोची समझी और वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। थैंक यू सर। संजीव जी, आपका सवाल भी सुओ मोटो से है। संजीव त्रिवेदी जी, अनम्यूट करिए, सुओ मोटो से। हाँ, मेरा सवाल ये है मनीष जी कि एक आप हेल्थ एक्सपर्ट से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, तो एक वर्ड है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और ये जो सामुदायिक संक्रमण है, क्या उसका स्टेज भारत में आ गया है? क्योंकि हम 25,000 के आसपास हैं और गवर्नमेंट इस आंकड़े को लेकर बहुत उत्साहित है। उनका ये कहना है कि इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं दूसरे देशों की तुलना में ये बहुत उत्साहजनक आंकड़े हैं। और आप बार बार जो बात कह रहे हैं कि टेस्ट को जानबूझकर कहीं कम तो नहीं रखा जा रहा है, क्या वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो एक स्पेक्टर है, जो एक डर है, उससे बचने का एक तरीका है जिसे अपनाया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? संजीव जी, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। और जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक किसी चिकित्सा एक्सपर्ट ने, विशेषज्ञ ने अभी तक अधिकृत तौर पर यह बात नहीं कही है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में पहुंच गए। पर उसके साथ साथ ये भी सही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वी आर नॉट टेस्टिंग टू कैपेसिटी। तो इन दोनों चीजों में एक विरोधाभास लगता है कि अगर हमको इस बात के ऊपर भरोसा है कि हम इस कोविड-19 को कम करने में, मैं नहीं कहूँगा रोकने में, कम करने में कामयाब हुए हैं, तो फिर टेस्टिंग रैंप अप करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो देखिए, टेस्टिंग इसलिए रैंप अप नहीं हो रही क्योंकि किट्स नहीं है, या टेस्टिंग इसलिए रैंप अप नहीं हो रही क्योंकि अगर उसके नकारात्मक परिणाम आते हैं तो उससे निपटने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसीलिए हम सरकार से जवाब जानना चाह रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि हमारे पास 1 लाख सैंपल टेस्ट करने की क्षमता रोज की है? अगर ये क्षमता है तो इस क्षमता को पूरी तरह से हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? थैंक यू सर। एक सवाल जो है वो आपके सुओ मोटो से है और माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर है
ईटीवी से रिपोर्टर ने पूछा है, नियामिका जी ने पूछती है, सर, as you said in your suo motu that the migrant workers also have a right to go back home and government should prepare a strategy for that. But today in a video released by Congress, former Union Minister P. Chidambaram suggested that the bulk should remain where they are. So a contradiction has been seen in the views of the party leaders. What is your opinion over that? Well, I have not seen the video which Mr. Chidambaram has released. In case there is any such video, I will definitely go back and check with him. But insofar as the question of migrants is concerned, I think we've been very clear from day one that there has to be a modus vivendi which allows them to travel back to the safety of their communities. There is a natural instinct in every person that when confronted with danger or peril, he seeks the safety and security of his home and the comfort of his loved ones. And I don't think that as a responsible nation, we should deny that same comfort, that same sense of security to our migrants who've now been on the roads for over 1 month. Okay, sir, we'll move to the next question. Vinitji, can you see someone is wanting to ask a question? प्रणव जी, मुझे कोई नहीं दिख रहा, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है. So I just raised my hand. I just raised my hand. Abdul Bari ji, can there be a day where you don't have a question? Yeah, Please yeah. go ahead. Yeah, quickly, please go ahead. Yeah. We can't see your hand. Go ahead. अच्छा. Please go ओके ahead. सर. ओके सर. एक तो बात सर, एक सवाल मेरा ये है, कल कपिल सिब्बल जी ने जो ब्रीफिंग की थी, during that briefing he told that 80% population do not suffer from this infection, this pandemic. एक तो बात ये कही थी. इस पर आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा किए जाना चाहिए. एक तरफ ये दोनों में कंट्राडिक्शन नजर आ रहा. दूसरा सवाल मेरा ये है माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर कि बहुत से जगह जो है, एक तो गवर्नमेंट ने जो है तो उनका जो वर्किंग आवर जो है 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो कंपनी मालिकान है या रियल एस्टेट में जो काम करने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से कहा है कि भाई ये इन माइग्रेंट लेबर को रोक के रखा जाए, इनको जो है तो, वरना ये चले जाएंगे तो हमारा काम, जब लॉकडाउन उठ जाएगा तो हमारा काम कैसे शुरू होगा. ये दोनों सवालों के जवाब. सर, इन्होंने अपने सवाल में ये भी बताया साथ में कि कल जब कपिल सिब्बल जी इस बात को कह रहे थे तो साथ में जो है हेल्थ एक्सपर्ट का भी वो हवाला दे रहे थे कि उन्होंने भी ऐसा कहा है कि चांसेस हैं कि 80% लोग जो है वो इन्फेक्ट नहीं होंगे. रणदीप गुलेरिया एम्स वाले, आईसीएमआर के जो चीफ है, उन्होंने देखिए, आपकी बात, सिब्बल साहब की बात बिल्कुल सही है. उसमें दो चीजें हैं कि लगभग अगर 1.5 करोड़ लोग पिछले 1 महीने से सड़क के ऊपर हैं और जिन कंडीशंस में वो रह रहे हैं वो कंडीशंस आइडियल नहीं है, और भगवान का लाख शुक्र है कि उनमें से ज्यादा लोग या लोग बीमार नहीं पड़े हैं, कोई ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन केसेस नहीं हुए हैं, कोई डेथ्स नहीं रिपोर्ट हुई हैं. तो इसका ये मतलब है कि वी आर पॉसिबली मूविंग टूवर्ड सम काइंड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, जिसको कम्युनिटी इम्यूनिटी कहते हैं. और बाकी अगर आप विश्व के आंकड़ों को संज्ञान में लें तो पूरी दुनिया में आपके अबाउट 32 मिलियन टेस्ट किए गए हैं, और 32 मिलियन टेस्ट में से ऑलमोस्ट 99%, अगर मेरे पास वो कागज यहाँ पे है कहीं पे, तो 99% जो केसेस हैं वो 60 साल से कम है. अपना मतलब जो 99% केसेस हैं वो 60 साल से ऊपर हैं जिनको इस चीज का असर पड़ा है. सो
एक जनरल विजडम है कि जो यंगर लोग हैं, जो यंगर पॉपुलेशन है, उस यंगर पॉपुलेशन को शायद इस बीमारी का असर कब होगा या उनकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी चुस्त दुरुस्त है कि इसके साथ डील कर ले। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे अगर कहीं पे कोविड-19 के केसेस आ जाते हैं और आप अग्रेसिवली कम्युनिटी में टेस्ट कर लेते हैं और आप पाते हैं कि भाई सिर्फ 4 ही केस हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, तो द वे यू डील विद दैट एरिया आल्सो, योर अप्रोच विल बी डिफरेंट। बट इफ यू डू नॉट टेस्ट, देन यू डू नॉट नो, देन इट्स अ गेस्टिमेट कि यहाँ पे 40 हो सकते हैं, यहाँ पे 400 हो सकते हैं। Your whole approach as to how do you deal with that issue then becomes completely different. It is not data driven. It is not based upon any epidemiological evidence. So that's why we are saying that you need to test aggressively and test more. जी सर, we'll move to the next and the last question. संदीप, माइग्रेंट वर्कर्स का क्वेश्चन आप गालिबन भूल गए। देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स के क्वेश्चन पे मैंने बहुत विस्तृत जवाब दे दिया है कि हमारा ये मानना है कि जो हिदायत बाकी मुल्क को दी गई है कि आप अपने घर रहो, सुरक्षित रहो, तो हमारे जो विस्थापित माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनके कारण हमारे शहर चलते हैं, जिनके कारण हमारी खेती चलती है, उनको भी ये अख्तियार और हक है कि अगर वो अपने घर वापस जाना चाहें तो सरकार को वो प्रावधान करने चाहिए, वो सहूलत देनी चाहिए कि वो सुरक्षित अपने परिवारों के सहित अपने गांव वापस जा सके। संदीप जी प्लीज सवाल पूछे। हाँ, नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। मैडम सोनिया गांधी एंड कांग्रेस शुरू से ही गवर्नमेंट को ये बता दिया स्पष्ट तरीके से कि हम कोविड-19 मुकाबले में सरकार के साथ रहेंगे। मैडम सोनिया गांधी कल चिट्ठी भी लिखा एमएसएमई लेके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी इसको क्रिटिसाइज किया और इन्होंने ये बोल रहा है कि कांग्रेस का काम सिर्फ बयानबाजी है, मैदान में उतर के कोई भी काम नहीं कर रहा है, घर पे बैठ के सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। योर कमेंट्स। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जी शायद जो उनकी सरकार की तरफ से हिदायत दी जाती है, शायद उन हिदायतों को पढ़ते नहीं हैं। या सरकार की तरफ से ये हिदायत नहीं दी गई कि सब लोग घर पे रहें? आप यहाँ तक कि सांसदों को और जो विधायक हैं उनको भी आप ये कह रहे हैं कि आप बाहर ना निकलें। आपने जो कर्फ्यू लगा रखा है, उस कर्फ्यू में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि अगर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे एक जगह होंगे तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी सरकार की मदद कर रही है कि जहां पर विस्थापित लोग हैं उनको हम खाना पहुंचा रहे हैं सरकार से अनुमति लेके, जहां पे किसी और चीज की जरूरत है हम वो सहूलत पहुंचा रहे हैं। पर जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ है लोगों को, अगर उसको हम उजागर नहीं करेंगे तो और कौन बोलेगा? क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी बात है और विचित्र बात है कि 1.5 करोड़ लोगों को आप बिल्कुल अनदेखा कर दें। ऐसा तो किसी लोकतंत्र में नहीं होता। और अगर आप बाहर के किसी देश को संज्ञान में लें, जिस तरह से कोविड-19 को लेकर चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और देश हों, जिस तरह से तीखे सवाल सरकार से किए जा रहे हैं, हमने तो पिछले 36 दिन में कोई तीखा सवाल किया ही नहीं, सिर्फ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। जी सर, I think with that we've come to the end of the briefing. Thank you very much. Thank you very for much. Thank taking you. all our Subscribe to Nation Next YouTube channel
press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.